everyone. I am Shivani Trivedi from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today, in this lecture, we are going to discuss about our next model after OSI, that is your TCP/IP model. In this lecture, we discuss what is a TCP/IP model and each and layer of TCP/IP model. And then we will discuss about what are the difference between OSI and TCP/IP and the addressing which TCP/IP follows, for data transfer and the relationship between layers and addresses in TCP/IP. So basically, TCP/IP model was developed prior to OSI model. Basically, it comes before OSI, and the layer of TCP/IP and OSI does not match exactly. But original when TCP/IP comes, it has four layers. That is host to network layer, internet layer, transport layer, and application layer. When we compare TCP/IP with OSI model, OSI has seven layers, as you can see in my previous lecture of OSI model. But here TCP/IP model has five layers, that is physical layer, data link layer, network layer, transport layer, and application layer. Physical data link network layer is similar to that of OSI model, but the session presentation application are totally merged in application layer here. So of OSI model. So these are the layered structure. TCP/IP is basically a hierarchical protocol. I am using the word hierarchical. Hierarchical here means the upper level के जो protocol है, it is basically supported by one or more lower level protocol. यहाँ पे होता क्या है कि हर एक जो लेयर है ना, वो प्रोटोकॉल से बनी हुई है. अब ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है, इट इज अ इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल. ये अपने आपके सारे प्रोटोकॉल्स वहां पे नहीं थे ओएसआई में. ओएसआई में हर एक लेयर का अपने आप में फंक्शंस था. यहाँ पे हर एक लेयर पे अपने आप में प्रोटोकॉल है, वो फर्दर दूसरे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करते हैं. ठीक है. तो in OSI model, I can say each layer has different functions, but in TCP/IP, every module have independent protocols. So hierarchical here means every upper layer protocol is supported by one or more lower level protocols. So at the physical and data link layer, TCP/IP does not have any specific protocol. It supports all the standard protocols. जितने भी standard protocols हैं वो physical और data link पे support हो जाते हैं. But network layer पे the most important protocol, that is your IP, internetworking protocol, is here, which further support ARP, RARP, IGMP, ICMP. Internetworking protocol is basically an unreliable connectionless protocol. Unreliable and connectionless protocol. What does it mean? Unreliable means, suppose I am setting four data, four packets. तो ये गारंटी नहीं लेगा कि चार के चार पहुंच जाए. बीच में अगर चार के तीन भी होगा तो आईपी गारंटी नहीं लेता. दैट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल. कनेक्शन लेस मीन्स हियर डेटा हम जो सेंड करते हैं यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म में करते हैं. पैकेट्स के फॉर्म में जो डेटा सेंड करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ से करते हैं. मतलब पैकेट्स का पहले कोई कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट नहीं होता, वो कोई सा भी पाथ ले सकता है. और डेस्टिनेशन पे पैकेट आपका इन ऑर्डर फॉर्म में नहीं, जरूरी नहीं इन ऑर्डर फॉर्म में पहुंचे, आउट ऑफ ऑर्डर ही पहुंचेगा. मान लो कि एक पैकेट ने एक रास्ता पकड़ा, एक वे पकड़ा जिसपे पैकेट लॉस्ट हो गया या वो डिले हो गया, तो इस वजह से पैकेट यहाँ पे सब आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचेंगे. और आईपी ये गारंटी भी नहीं लेगा कि वो रीअसेंबल करके दे आपको पैकेट. तो इट इज अ कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल. इट डज नॉट गिव द फैसिलिटी ऑफ रीऑर्डरिंग द डेटा, है ना, कि वो डेस्टिनेशन पे अराइव हो, कि वो उसको रीअसेंबल या रीऑर्डर करे. इट डज नॉट टेक दैट गारंटी. नेक्स्ट उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल एआरपी, आप ये सारे प्रोटोकॉल डिटेल में आगे के नेटवर्क लेयर के चैप्टर में पढ़ोगे. एआरपी इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल. जब आपको किसी डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं पता, मैक एड्रेस द फिजिकल एड्रेस और लिंक एड्रेस 48 बिट का एड्रेस होता है ईथरनेट पे, जो एनआईसी कार्ड पे इम्प्रिंट होता है. अगर वो आपको उसका आईपी एड्रेस नोन है, अगर किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस नोन है बट उसका मैक एड्रेस नहीं पता, तो एआरपी विल हेल्प. आरएआरपी मतलब रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. इसका रिवर्स कि मतलब आपको मैक एड्रेस पता है बट आईपी एड्रेस नहीं पता, तो आरएआरपी आपको आईपी एड्रेस लाके देता है.
Then ICMP, Internet Controlled Message Protocol, is basically used by host for error reporting messages, for query क्वेश्चन मतलब रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई के लिए, एरर रिपोर्टिंग, एरर के फीडबैक के फॉर्म में अगर आपको कोई एरर भेजनी है, उसमें वो जो एरर्स आती है वो आईसीएमपी के थ्रू आती है। नेक्स्ट, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जब भी आपको मल्टीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग करनी है तब आप इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जब भी आपको मैसेज किसी ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट्स को भेजना होता है तब हम आईजीएमपी का यूज करते हैं। डिटेल में इसको फर्दर आगे के चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर तीन प्रोटोकॉल है, टीसीपी, यूडीपी एंड एसटीपी। एसटीपी, ठीक है। टीसीपी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल विच इज कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है जैसे टेलीफोन होता है, उसमें पहले कनेक्शन डायल अप टोन से स्टैब्लिश होता है, फिर हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, जब हमारी कन्वर्सेशन हो जाती है तो हम कनेक्शन टर्मिनेट कर देते हैं। ऐसे ही आपका टीसीपी भी काम करता है। टीसीपी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, ठीक है। तो इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यूडीपी इज कनेक्शन लेस, है ना। इट इज अ कनेक्शन लेस। जब भी हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए या हाई स्पीड चाहिए तब हम यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। इसका भी यही काम है, प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल है। यहाँ पे हम लोग पैकेट जो यूडीपी का जो हेडर होता है उसमें हम लोग सोर्स पोर्ट का एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस, चेकसम भेजते हैं, मैसेज की लेंथ कितनी है वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं। हाँ, तो ये सब इंफॉर्मेशन हम यूडीपी के हेडर में डाल के भेजते हैं, ये हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एससीटीपी, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी। दोनों के बेस्ट बेस्ट फीचर लेके आपका एससीटीपी बना है। ये बेसिकली यूज होता है फॉर आपका वॉइस ओवर इंटरनेट, वीओआईपी लाइक व्हाट्सएप, स्काइप, वहां पे आपका एससीटीपी यूज होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे आपके सारे मेजर प्रोटोकॉल्स हैं। इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। मोस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल्स आर डिफाइंड एट द एप्लीकेशन लेयर लाइक टेलनेट, डीएनएस, एचटीटीपी, है ना, फॉर वेब पेजेस, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरिंग द मेल, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। तो ये सारे मेजर प्रोटोकॉल आपके एप्लीकेशन लेयर पे है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ओएसआई एंड टीसीपी मॉडल। डिफरेंस क्या है? पहले तो ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी माने इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें यहाँ पे 7 लेयर्स होती हैं, यहाँ पे 4 to 5 लेयर्स होती हैं। ये कम है यूज में और ये टीसीपी आईपी बहुत ज्यादा यूज में आता है। ये वर्टिकल अप्रोच है, आपने देखा मैंने लेयर्स वर्टिकली बनाई थी, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी ऑफ द पैकेज इज गारंटीड, बट यहाँ पे पैकेज की डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं लेता टीसीपी आईपी। ये लेस रिलायबल है, बल्कि ये मोर रिलायबल है ओएसआई मॉडल के कंपैरिजन में। रिप्लेसमेंट एंड टू ऑफ टूल्स एंड चेंजेस कैन इजीली बी डन इन मॉडल। आप चेंजेस यहाँ इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस इतने इजीली नहीं हो सकते इन कंपैरिजन टू ओएसआई मॉडल। नेक्स्ट, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल 4 लेवल ऑफ एड्रेसिंग सपोर्ट करता है। फिजिकल एड्रेस दैट इज योर मैक एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस दैट इज योर आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस विच विल यूज एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, स्पेसिफिक एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस मीन्स 48 बिट का ये एड्रेस होता है। बेसिकली ये डेटा लिंक लेयर पे हम मैक एड्रेस की बात करते हैं। इट इज बेसिकली इम्प्रिंटेड ऑन द एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड पे इम्प्रिंटेड होता है, हर एक डिवाइस का एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उस पे ये इम्प्रिंटेड होता है, ठीक है। इसको हम आप मैक एड्रेस को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में, विच इज सेपरेटेड बाय कोलन 010201 2C 4B। इस तरीके से ये मैक एड्रेस आपका प्रिंट होता है। 6 बाइट का एड्रेस होता है, 48 बिट का फिजिकल एड्रेस होता है, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट से, एंड एवरी बाइट इज सेपरेटेड बाय कॉलन। आईपी एड्रेस 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस किस कंसर्न विद एट नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली अ 32 बिट एड्रेस दैट इज कैन बी यूनिकली डिफाइन अ होस्ट। एक हर जैसे आपका एक मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, वो आपका यूनिक है, वैसे ही आईपी एड्रेस हर एक होस्ट का यूनिक होता है, जो उसको पूरे नेटवर्क में, पूरे इंटरनेट में उसकी एक अलग पहचान बनाता है। पोर्ट एड्रेस, यहाँ पे पोर्ट एड्रेस की बात करूं, ये 16 बिट का होता है, 16 बिट का पोर्ट एड्रेस होता है, ठीक है।
तो पोर्ट एड्रेस मतलब एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं, जब आपको किसी प्रोसेस को मैसेज सेंड करना है, एक एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे मैसेज सेंड करना है, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा पोर्ट नंबर या पोर्ट एड्रेस रिक्वायर होगा, सोर्स का डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस रिक्वायर होगा। वो पोर्ट एड्रेस एक एप्लीकेशन या एक प्रोसेस का होता है 16 बिट का। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एड्रेस। स्पेसिफिक एड्रेस में आपके जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, जो भी बाकी बचे एड्रेस, ईमेल एड्रेस हो गया, आपको कोई ईमेल भेजना है तो आप डेस्टिनेशन का ईमेल एड्रेस डालते हैं @gmail.com करके। या फिर आपका हो गया क्या, योर यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर www.facebook.com। तो ये इस टाइप के जो एड्रेसेस हैं, दैट इज योर स्पेसिफिक एड्रेस। अब लेयर्स की बात करें, कौन सा एड्रेस किस लेयर पे यूज होता है, तो फिजिकल एड्रेस आपका टीसीपी आईपी में फिजिकल डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल और डेटा लिंक लेयर इधर यूज होता है। और लॉजिकल एड्रेस आपका नेटवर्क लेयर पे यूज होता है, आईपी प्रोटोकॉल यूज करता है। टीसीपी यूडीपी आपके पोर्ट एड्रेसेस का यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज है। एंड स्पेसिफिक एड्रेस जितने भी है, यूजर इंटरफेस एड्रेस जिसको यूजर यूज करता है, वो सारे स्पेसिफिक एड्रेस के अंदर आते हैं, तो वो आपका एप्लीकेशन लेयर यूज करता है। So these are the references I used to design this lecture. Thank you for your patience listening.